Assalamu alaikum everyone and Pakhair Raklet. This is Fahad and I hope you are all doing well. ये है Redmi के Buds 6 Pro and these are the flagship level earbuds from Redmi product line. And I got these from phonepro.pk and the price of these earbuds is 17,000 Pakistani rupees. I'll put the link of these in the video description so you can check it out. मैंने इन earbuds को thoroughly test किया for sound, ANC, calling, gaming and battery performance. To find out their pros and cons, let's dig into the video. But before that, if you're new to the channel को subscribe करना मत भूलिएगा. Let's get into it. Redmi Buds 6 Pro का box small and minimalistic है with product image on top of it. And you get a product authentication code जिसको आप scratch and scan कर सकते हैं to verify the originality of the product. बॉक्स के अंदर आपको बड्स चार्जिंग केस के अंदर ही मिलते हैं एंड इसके अलावा यू गेट अ USB A to C केबल एंड सम एक्स्ट्रा रबर टिप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड लास्टली यू गेट अ यूज़र मैनुअल. इमीडिएटली जो चीज़ मुझे डिफरेंट फील हुई वो है इस केस का फिनिश जो कि बहुत ही प्रीमियम है. ऑल्दो दिस कलर डज नॉट हैव द एडवांस एक्जिमर कोटिंग जो कि लेवेंडर पर्पल कलर पे मिलता है, बट स्टिल द केस इज़ वेरी प्रीमियम. केस का बिल्ड पॉलीकार्बोनेट का है. केस डायमेंशंस एंड विजुअल्स में Redmi Bud 5 Pro जैसा ही दिखता है. केस के फ्रंट पर आपको एक LED स्ट्रिप मिलता है जो कि केस के रिमेनिंग चार्ज को रियल टाइम डिस्प्ले करता है. एंड केस के बैक साइड पर Redmi की ब्रांडिंग के साथ ट्रिपल ड्राइवर साउंड मेंशन्ड है बिकॉज दीज ईयरबड्स हैव ट्रिपल कोएक्सियल ड्राइवर्स जिसको मैं आगे जाके वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा. बॉटम पर टाइप सी पोर्ट के साथ एक पेयरिंग एंड रीसेट बटन है जिसको सिंगल क्लिक करने से आप केस का रिमेनिंग चार्ज चेक कर सकते हैं एंड 2 सेकेंड्स तक प्रेस रखने से आप बड्स का पेयरिंग मोड इनेबल कर सकते हैं. एंड सेम बटन को 10 सेकेंड्स तक प्रेस रखने पे आप बड्स को केस के अंदर ही फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं. केस का लिड ओपनिंग मैकेनिज्म काफ़ी स्मूथ है एंड केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन भी परफॉर्म करता है. वेट की अगर बात करें तो केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स अराउंड 47 ग्राम्स है एंड ईच बड वेज अराउंड 5 grams. Buds are stem shaped and Redmi Buds 6 Pro also looks exactly like Redmi Buds 5 Pro. बट Buds 6 Pro का फ्रंट पार्ट ग्लॉसी है एंड Redmi Buds 5 Pro का फ्रंट पार्ट टेक्सचर्ड है. बड्स पे कोई LED इंडिकेटर नहीं है एंड दीज हैव अ टोटल ऑफ 3 mics per earbud. One mic is located at the bottom जिसको टॉप mic कहते हैं. The other is located in the top part that shares a common vent and इसको feed forward mic कहते हैं. And the third mic is inside the mesh that is called feedback mic. बड्स के फ्रंट टॉप ग्लॉसी एरिया में ही टच सेंसर्स की प्लेसमेंट है. ओवरऑल बड्स का फिनिश काफ़ी प्रीमियम है एंड दीज हैव इन ईयर डिटेक्शन सेंसर्स टू. बड्स के सील्स काफ़ी रिफाइन है एंड मैश की क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है. Although these earbuds are IP54 splash resistant, but if you look at the plastic wrap of the case, it says कि आपने humid area में इन्हें यूज़ नहीं करना and पानी से इन्हें दूर रखना है because it may cause water damage. Ear fit इनका normal है. They don't hurt your ears, but time to time ये मेरे कान में grip lose करते हैं and I have to adjust them to keep the grip intact. Otherwise they're fine, but आपका ear fit experience मुझसे different हो सकता है. The magnetic hold of the buds inside the case is very strong and ये moderate to extreme shake करने पर भी केस से बाहर नहीं आते. Bluetooth version इनका 5.3 है and they support Google Fast Pair. So you can get them paired across all your devices through your email account. ये earbuds LDAC, AAC and SBC codec को support करते हैं. इनके drivers काफ़ी interesting हैं because these have what Redmi calls triple coaxial drivers. इनको डिवाइस के साथ पेयर करने के बाद हर बार केस का लिड ओपन होते ही ये अंडर 3 seconds में कनेक्ट हो जाते हैं. But connection time will always depend on your phone's Bluetooth hardware. In my case, I tested them with Xiaomi 14T Pro that has a new flagship hardware. अब ज़रा इनके ट्रिपल कोएक्सियल ड्राइवर्स डिस्कस करते हैं. These consist of 2 piezoelectric ceramic tweeters and one 11mm dynamic driver with titanium diaphragm. Now, how does that translate into real-world performance? इसका सिंपल आंसर है कि they are one of the best sounding earbuds, जो कि एंकर के साउंड कोर लिबर्टी 4 प्रो जैसे साउंड परफॉर्मेंस आपको देगा. वोकल आउटपुट से लेकर सब बेस तक हर चीज़ इन पे आपको सेपरेट फील होगी एंड देयर इज़ लिटरली नो साउंड ओवरलैपिंग. द मिड्स आर सुपर रिफाइंड, highs and lows are well executed, sub bass is extremely balanced. Overall, these are arguably one of the best sounding earbuds you may find. फुल वॉल्यूम इनका काफ़ी लाउड है एंड अराउंड 50% वॉल्यूम लेवल तक इनकी आवाज़ बाहर लीक नहीं होती, बट अराउंड 70% वॉल्यूम पे जस्ट लाइक ऑल अदर ईयरबड्स इनकी आवाज़ बाहर आना शुरू हो जाती है.
But good thing about these earbuds is that they don't hurt your ears at all and full volume पे इनकी आवाज़ डिस्टॉर्ट नहीं होती। एलडैक कोडेक यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो जैसे मैं पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एलडैक कोडेक आपके नॉर्मल डे टू डे यूज़ में बिल्कुल यूटिलाइज नहीं होगा और एलडैक के लिए आपने स्पेसिफिक बिटरेट वाली ऑडियो फाइल्स डाउनलोड करने होंगे जिनका बिटरेट 990 किलोबिट्स पर सेकेंड तक हो एंड वो फ्री में ईजिली अवेलेबल नहीं होते। एंड नॉर्मली जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे मीडिया कंज्यूम करते हैं उसके ऑडियो का बिट रेट 128 टू 384 किलोबिट्स पर सेकंड के बीच में होता है। बट सबसे पहले ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपका फ़ोन एलडैक सपोर्ट करता भी है या नहीं। To test the LDAC quality on these earbuds, I downloaded a 24-bit sound sample from Sony in FLAC format and tested it out. And although high-res audio did sound very crisp, but मुझे कोई बहुत बड़ा difference नहीं लगा from a normal audio consumer's perspective. Now let me answer a few questions. Do they sound better than the Soundbeats Clear and Redmi Buds 6 Lite? So इसका आंसर अगर आप generally without considering the price सुनना चाहते हैं तो the answer is definitely yes. They definitely sound better. पर अगर आप Micronics में नहीं चाहते and if you are just a normal user then आपको ये difference significant नहीं लगेगा. Now let's take price of Redmi Buds 6 Lite and Soundbeats Clear into consideration. So should you just buy Redmi Buds 6 Pro for ANC and sound instead of the Redmi Buds 6 Lite? So the answer is a big no. Redmi Buds 6 Lite will do almost everything that these can do for a fraction of the price. Now comes the disappointing part of these earbuds, and that is the active noise cancellation. See, on paper, these have a solid ANC of 55 decibels, and these have what Redmi calls the leveless noise reduction. Just so these can adjust their sampling 16,000 times per second to give you a better noise cancellation. And also, the Buds 6 Pro has 4 kHz bandwidth noise reduction capabilities. But despite all the claims, the active noise cancellation on these is very mediocre. Usually ANC वाले earbuds में एक vacuum सा create होता है ears में. But in an attempt to remove that, Redmi blasted their ANC with a very prominent white noise. जो कि definitely feel होगा आपको, and that alone kills the entire experience of the active noise cancellation. And surprisingly मुझे QCY Melobuds and 50 pin से better active noise cancellation मिला जो कि सिर्फ 6300 के हैं and it also has 45 decibels of ANC compared to the 55 decibels on the Redmi Buds 6 Pro. Anyhow, it can eliminate and filter noises up to 60% from the surroundings, I would say, and nothing more than that. Transparency mode is also just normal and it's nothing out of the world. इनके कंपेनियन ऐप को आप Xiaomi earbuds के नाम से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. Once you download the app and register your account, then the app interface looks like this. ऐप पे आपको बड्स एंड केस दोनों का चार्ट शो होगा एंड उसके नीचे आपको ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड का टॉगल मिलेगा जिससे आप ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के लेवल्स एडजस्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सेट ANC टू अडेप्टिव जिससे बड्स खुद ही नॉइस लेवल को सेंस करके ANC को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं. जेस्चर्स के ऑप्शन में आप बड्स के टच फंक्शंस को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोल्स आपको मिलते हैं वो आपके सामने हैं. एंड आप मीडिया वॉल्यूम को बड्स से स्वाइप अप एंड स्वाइप डाउन के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं. ऑडियो इफेक्ट्स के ऑप्शन में आप डिफरेंट इक्वलाइजर मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सेट योर कस्टम प्रीसेट. एडेप्टिव साउंड से वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा लाउड हो जाता है एंड डायमेंशनल ऑडियो एंड हेड ट्रैकिंग का फीचर मुझे कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा. इसके बाद एडिशनल सेटिंग से आप इन ईयर डिटेक्शन को ऑफ या ऑन कर सकते हैं. And since these earbuds also have dual point connectivity, जिससे आप इन earbuds को at a time 2 devices के साथ simultaneously connect कर सकते हैं. So इस ऑप्शन को भी आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं. Find My Buds का ऑप्शन भी आपको मिलता है and firmware updates भी आपको रिसीव होते हैं through the app. Just like I got an update after I paired these to my phone. And that's all about the app. एंड इफ़ यू हैव अ Xiaomi फ़ोन सो आप इनके एडिशनल फीचर्स को ब्लूटूथ सेटिंग्स एंड कंट्रोल सेंटर से भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं जिससे आप कोडेक भी चेंज कर सकते हैं. लिस्ट में दिए गए फ़ोन्स में से अगर आपके पास कोई सा भी फ़ोन है तो आप शेयर ऑडियो का फीचर यूज़ कर सकते हैं जिससे आप 2 ईयरबड्स पे सेम ऑडियो ट्रैक एट अ टाइम प्ले कर सकते हैं. These have a total of 6 mics and calling a time किसी भी earbuds के single earbud का single mic ही यूज़ होता है चाहे आपने दोनों earbuds साथ क्यों न लगाए हों. They also have wind noise reduction feature during calls.
कॉल रिकॉर्डिंग सैम्पल से आप खुद ही इनकी कॉल क्वालिटी को जज कर लें। इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर कुछ इस लेवल का है एंड टू मेक द टेस्टिंग कंडीशन मोर चैलेंजिंग आई विल टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई स्पेयर फ़ोन। एंड इसके बाद जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको मिलेगी फ़ोन की ऑन सिम कॉलिंग। नाउ आई विल स्विच टू द Redmi Buds 6 Pro। Redmi Buds 6 Pro पे स्विच करने के बाद Redmi Buds 6 Pro की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी ऑन सिम कॉलिंग इन अ partially simulated and naturally noisy environment and without the ambient traffic sound mic की quality कुछ इस तरह से आएगी Redmi Buds 6 Pro की। And they also have anti-wind noise reduction features. So I'll turn on this mini fan to generate some wind to see how the wind noise reduction works on the Redmi Buds 6 Pro. And also, I'll put one button inside the key to show you कि calling के time सिर्फ एक ही वर्ड काम करता है, चाहे कोई भी ईयरबड हो, चाहे जितने भी नंबर ऑफ माइक्स हो ऑन हर ईयरबड। सो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही इसके माइक को कंपेयर कर लें फ़ोन के माइक के साथ। इन ईयरबड्स में डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं है, बट ऑन पेपर दीज हैव अ गेमिंग लेटेंसी ऑफ 45 मिलीसेकंड्स रिगार्डलेस। मैंने इनसे पबजी खेल के देखा एंड मुझे इनकी गेमिंग लेटेंसी काफ़ी डिसेंट लगी। डिले काफ़ी मिनिमल फील हुआ मुझे। द फर्स्ट स्टेप्स वर क्लियर एंड एवरीथिंग वाज प्रीटी मच इन सिंक। सो आप इनको कैजुअल गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट रिमेंबर माई फ़ोन इज़ रनिंग ऑन फ्लैगशिप हार्डवेयर दैट हैज़ लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन, सो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस विद अ डिफरेंट फ़ोन मुझसे डिफरेंट हो सकता है। Watch out! Get to the zone. Help! Mark the location. Dude, you had to get to the zone. Excellent work. Bring up voice chat. Bring up voice chat. Bots. They're bots. Yeah, they're bots. Dude, I'm sorry. I'm actually recording for YouTube. अब Redmi Buds 6 Pro के टेस्टिंग का वो फेज़ जिसने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट एंड कंफ्यूज किया वो है बैटरी परफॉर्मेंस। See, on paper, these have an amazing battery stats. The buds have 54 mAh battery cell per earbud, and the case has a total capacity of 480 mAh. Also, these support fast charge feature, जिससे आपको 5 मिनट्स के चार्ज से 2 आवर्स का प्ले टाइम भी ऑन पेपर देखने को मिलता है। पर उसकी कंडीशन ये है कि केस का चार्ज 20% से ऊपर होना चाहिए। Other than this, 9.5 hours ka playtime with ANC off and 36 hours of total playtime with case really looks nice on paper. But for real-time testing, मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन से कनेक्ट किया after charging them to 100%. And ANC off के साथ with AAC codec enabled on 70% volume, I played an audio track of almost 12 hours. And in between testing, left earbud 5 hours and 15 minutes के मार्क पे ऑफ हुआ। एंड इसके बाद राइट ईयरबड भी 6 आवर्स एंड 32 मिनट्स के मार्क पे ऑफ हुआ। सो अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ टोटल प्ले टाइम ऑफ 6 hours and 32 minutes, which is way less than the advertised play time. Anyhow, based on Xiaomi's claim, these earbuds are tested on 50% volume for their playtime of 9 hours and 30 minutes. So I gave them benefit of the doubt and again connected them to my testing phone. But this time volume मैंने 50% पे ही रखा एंड ANC ऑफ के साथ AAC कोडेक इनेबल पे मैंने दोबारा इन पे ऑडियो ट्रैक प्ले किया। पर अगेन अनफॉर्चुनेटली इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द क्लेम प्ले टाइम एंड मुझे 7 hours and 10 minutes का प्ले टाइम मिला।
अब ANC ऑन के साथ इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने फिर से इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड 50% वॉल्यूम पे AAC कोडेक के साथ मैंने इन पे ऑडियो ट्रैक प्ले किया एंड विद ANC ऑन 50% वॉल्यूम पे आई सरप्राइजिंगली गॉट अ प्ले टाइम ऑफ 7 hours and 36 minutes which made me think कि शायद इनकी बैटरी स्लोली कैलिब्रेट एंड ऑप्टिमाइज हो रही हैं। सो अगेन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने इन्हें अपने स्पेयर फ़ोन के साथ कनेक्ट किया टू टेस्ट देयर प्ले टाइम फॉर द 5th टाइम एक्चुअली, बिकॉज ऑफ कैमरा भी मैंने इन्हें टेस्ट किया था 1 टाइम। एनी हाउ इस बार भी 50% वॉल्यूम पे ANC ऑफ के साथ आई टेस्टेड दैम एंड अगेन आई गॉट अ वेरी डिसअपॉइंटिंग 7 hours and 9 minutes ऑफ प्ले टाइम फ्रॉम दीज। सो ये डेफिनेटली अपना क्लेम टाइम पूरा नहीं कर पा रहे। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 11:33 AM चार्जिंग केस के अंदर रखा व्हेन दे वर एट अ 0% चार्ज। एंड जब आप बड्स को केस के अंदर चार्जिंग के लिए रखते हैं तो केस का LED कुछ सेकंड्स के लिए ही ऑन होता है एंड फिर ऑफ हो जाता है। एनी हाउ अराउंड 12:26 PM जब मैंने चेक किया सो द बड्स वर फुली चार्ज्ड इनसाइड द चार्जिंग केस। सो इन टोटल द बड्स टुक 53 minutes टू गेट फुली चार्ज्ड। केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम मालूम करने के लिए मैंने केस को अराउंड 10:28 AM चार्ज पर लगाया एंड जब आप केस को चार्ज पर लगाते हैं तो केस का LED स्ट्रिप रियल टाइम चार्जिंग स्टेटस इंडिकेट करता है। अराउंड 11:45 AM जब मैंने चेक किया सो द केस वाज फुली चार्ज्ड। सो इन टोटल द केस टुक 1 hour and 17 minutes टू गेट फुली चार्ज फ्रॉम 0 to 100 एंड केस का चार्ज फुल होने पे LED ऑफ हो जाता है। केस बड्स को अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2.5 to 3 टाइम्स के बीच में ही चार्जेस दे सकता है एंड ये बात मैं केस के कुछ बैटरी साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद बोल रहा हूँ ताकि बैटरी कैलिब्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर ही बीच में से निकल जाए। एंड रिमेंबर केस को आपने बिटवीन 2.5 वॉट एंड 5 वॉट वाले चार्जर से ही चार्ज करना है बिकॉज केस का इनपुट 5 वोल्ट इंटू 700 मिली एम्प्स है विच मेक्स 0.7 एम्पेयर एंड जब आप 5 वोल्ट्स को 0.7 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं सो इट मेक्स 3.5 वॉट्स और ये बात ईयरबड्स के बॉक्स पर भी लिखी हुई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।